મહારાષ્ટ્રમાં ચાલ્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જાદુ। જી હા, મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે કમાલ કરી દીધી છે। 29 પૈકી 26 મહાનગરપાલિકામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ છે। મુંબઈમાં ભાજપે ઇતિહાસ રચી દીધો છે। મુંબઈમાં ભાજપે એકલા હાથે 100 બેઠકને પાર પહોંચી છે। મુંબઈમાં ભાજપ અને શિંદેની શિવસેના બહુમતીને પાર પહોંચી છે। મહાયુતિ સામે ઠાકરે બ્રધર્સ પણ હાંફી ગયા। મુંબઈમાં ભાજપ અને ભાજપ ગઠબંધન 129 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। ઠાકરે બ્રધર્સ 72 બેઠકો પર ચાલી રહ્યા છે આગળ। મુંબઈમાં કોંગ્રેસ 15 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે મહાયુતિ સામે ઠાકરે બ્રધર્સ હાંફી ગયા છે। ઠાકરે બ્રધર્સ 72 બેઠકો પર ચાલી રહ્યા છે આગળ। તો આપને જણાવી દઈએ, મુંબઈમાં આ વખતે કિંગ કોણ બનશે? સૌથી મોટો સવાલ હતો કે પરિવર્તન કે પછી પુનરાવર્તન। જો કે ત્યાંની જનતાએ પુનરાવર્તનનો રંગ રાખ્યો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખોબલે ને ખોબલે મત આપ્યા છે, જેથી હાલ તો મહાયુતિ સામે ઠાકરે બ્રધર્સ જાણે હાંફી ગયા હોય તે પ્રકારના આંકડા સામે આવી રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અત્યારે ઉજવણીનો માહોલ। અને મહારાષ્ટ્રના મહાનગરપાલિકાના પરિણામ સૌને ચોંકાવી રહ્યા છે। વધુ માહિતી સાથે અમારી સાથે મુંબઈથી ઉર્વશી કોણા અમારા સંવાદદાતા જોડાઈ ગયા છે। ઉર્વશી, સીધા આપની પાસે આવીશું। મહારાષ્ટ્રમાં આ વખતે શું થાય છે? પૂરા દેશની નજર તેના પર મંડાયેલી હતી। ઇતિહાસ સર્જી દીધો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ। જો કે ઠાકરે બ્રધર્સ પણ 72 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યા છે। કયા પ્રકારે આ પરિણામ જોઈ શકાય, ઉર્વશી? बिल्कुल, मुंबईकरों ने ठान लिया और वो पूरा जो एक डिसीजन था वो कर लिया, जहां पे उन्होंने बीएमसी की चाबी अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना जो है उनके हाथों में दे रखी है। ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है, ये समझ के आ रहा है। ये फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से अभी भी गिनती शुरू है। देखना जरूरी होगा कि क्या और किस तरह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना किस तरह से आगे बढ़ती है, कितने नंबरों से आगे बढ़ती है। पर एक अगर हम देखें तो ठाकरे ब्रदर्स या ठाकरे के लिए, ये ठाकरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा अहम ऐसा धक्का माना जा सकता है, क्योंकि ठाकरे परिवार और शिवसेना तो इकट्ठी थी एक बार की, वो बीएमसी पर राज कर સંપર્કમાં સમસ્યા આવી રહી છે। ફરીથી તમને સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। આપને જણાવી દઈએ, મુંબઈમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઇતિહાસ સર્જી દીધો છે। 45 વર્ષમાં પહેલીવાર ભારતીય જનતા પાર્ટી મુંબઈમાં બાદશાહ બની છે। જી હા, મુંબઈમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 100થી વધારે બેઠકો એકલા હાથે જીતી છે અને આ જ બતાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એકનાથ શિંદેએ કઈ રીતે ઠાકરે બ્રધર્સને હંફાવી દીધા છે। મુંબઈગરાઓએ ખોબલે ને ખોબલે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એકનાથ શિંદેની શિવસેનાને વોટ આપ્યા છે। મહાયુતિ અને મુંબઈનો કિંગ હવે બન્યો છે ભાજપ। જો કે મહારાષ્ટ્રની જે 29 મહાનગરપાલિકાની વાત હતી તેમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સફાયો બોલાવી દીધો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી નાગપુરની વાત હોય કે પછી વર્ધાની વાત હોય, જ્યાં જુઓ ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિજયને લઈને ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો આપ જુઓ, મહાનગરપાલિકાની આ પરિણામ હતા અને તેમાં આખરે કોણ જીતે છે તેના પર પૂરા દેશની નજર મંડાયેલી હતી, કેમ કે આ પરિણામો ઘણી બધી રીતે મહત્વપૂર્ણ થઈ જાય છે। ફરીથી અમારા સંવાદદાતા ઉર્વશી પાસે જઈશું। ઉર્વશી, જે રીતે પરિણામો સામે આવ્યા છે નાગપુરથી લઈને મુંબઈ, જ્યાં જુઓ ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પર જે રીતે લોકોએ પ્રેમ વરસાવ્યો છે, ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ એની ઐતિહાસિક આ પરિણામ કહી શકાય। ઉર્વશી, बिल्कुल, पूरे महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सारे महापालिकाओं का ये चुनाव था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीती है। और खास कर हम बात करेंगे मुंबई महानगर पालिका की, मुंबई नगर निगम की, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और साथ ही में एकनाथ शिंदे इनकी सेना के हाथों में मुंबईकरों ने अपनी चाबी दे दी है।
बीएमसी जिसे सबसे ज्यादा और सबसे बहुत ही ज्यादा ऐसी अमीर जो नगर निगम है वो बीएमसी है, और वो अब भारतीय जनता पार्टी और साथ ही में एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना जो है उनके हाथों में आई है। मैं फिलहाल वर्षा इस बंगलो में हूँ, बंगलो के बाहर हूँ। ये जो है गवर्नमेंट बंगलो है खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, और यहाँ पे फिलहाल एक बैठक चल रही है। राधे साथी में जो अब तक काउंटिंग शुरू हुई है उन सबको देखा जा रहा है। यहाँ पे दूसरे मंत्री यानी कि आशीष शेलार है और दूसरे भाजपा के नेता भी इकट्ठे यहाँ पे मौजूद है। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निकलकर प्रदेश कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है नरीमन पॉइंट पे वहां पे पहुंचेंगे, और वहां पे एक बड़े पैमाने पे ऐसा जल्लोष दिखाई दे रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ऐतिहासिक जीत है। इतने सालों से 25 सालों से ज्यादा हमेशा शिवसेना ने पूरे बीएमसी को रूल किया है, और इस बार जो मेयर बैठेगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही बैठेगा। राधे मुंबई का किंग कौन, वो मुंबई करों ने डिसाइड कर लिया है। पर हम थोड़ा सा पॉज ले ले तो बेटर है, क्योंकि ये वहीं पे विरोधकों का ये भी कहना है कि कहीं न कहीं गिनतियों में गड़बड़ हुई है। कई जगह सारे राउंड्स कंप्लीट ना होते हुए भी भाजपा के जीत को बुलाया गया है, और वहीं खास कर उद्धव ठाकरे इनकी जो शिवसेना है वो हर जगह ये कह रही है कि अब तक सिर्फ 80 जगहों के निकाल आए हैं, और पूरे 227 जो सारे वार्ड के निकाल है वो आने बाकी है। और इसलिए ये विरोधकों का कहना है, वहीं भाजपा की ओर से ये भी कहना है कि कई बार से पिछले कुछ दिनों से खास कर ठाकरे ब्रदर्स के ये रोना धोना शुरू है। कई बहाने निकाले गए हैं हारने के लिए, पर इस बार जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसे उन्हें कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल से उर्वशी, देखिए जिस तरह से जनता ने वोटिंग की है सीधे तौर से दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है पूरी जनता। ठाकरे ब्रदर्स का कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सी ऐसी बात है जो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आई? देखिए, एक चीज हम देखें अगर तो ठाकरे ब्रदर्स, जब ठाकरे ये नाम सिर्फ इकट्ठा बीएमसी पर रूल करता था तब बात अलग थी, तब बात थी बाला साहब ठाकरे और उनके चाम की। आज जब हम दोनों ठाकरे ब्रदर्स इकट्ठे आते हुए भी देख रहे हैं फिर भी वो चाम कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया है। खास कर अगर हम देखें तो आंकड़ों में भले ही आंकड़े सिंगल डिजिट पे ना हो, डबल डिजिट तक पहुंचा है, पर राज ठाकरे को कितना एक्सेप्टेंस है ये बड़ा सवाल रहा है। मराठी मानुस का कार्ड जिस तरह से प्ले किया गया गलियों में, खास कर दादर और उस इलाकों में जिस तरह से प्ले किया गया, वो कितना काम किया ये भी एक सवाल होता है। उद्धव ठाकरे को जहां पे माइनॉरिटीज के कुछ वोट जरूर मिले हैं, कई जगह पे बहुत अच्छी जीत भी हासिल हुई है, वहीं राज ठाकरे को अब तक सिर्फ सिंगल डिजिट के नंबर्स मिले हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का है। दूसरा धक्का मतलब कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने अलग लड़ते हुए भी कहीं पे भी अपना चमत्कार दिखाया नहीं है। अब अगर कांग्रेस, दोनों ठाकरे ब्रदर्स और एमआईएम और दूसरी पार्टियां हैं वो अगर इकट्ठे हो जाती हैं तो क्या वो नंबर स्ट्रांग होगा, क्या वो नंबर मैजिकल फिगर को क्रॉस करेगा, क्या ये देखना जरूरी है। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो भाजपा और एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना आगे है, और उसमें भी भाजपा सबसे आगे है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इनकी जो शिवसेना है उनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं मिले, जिसका एक हम अगर कंक्लूजन निकाले तो ये हो सकता है कि शायद मुंबई के मराठी मानुस ने एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना को अब तक ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया। उनके ठाकरे सियोन, एक जो बाला साहब ठाकरे इनके खून की बात हो रही थी, तो असली शिवसेना कौन, असली मराठी मानुस कौन, उस पर जो एक वाद हो रहा था, उस पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को इतना एक्सेप्टेंस शायद नहीं मिला है, ये भी कहा जा रहा है। पर जरूर रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी गिनती हुई नहीं है। अभी भी कई ऐसे जगहें हैं जहां पे गिनती शुरू, और खास कर विरोधक की माने तो गिनतियां अब तक सिर्फ 80 जगहों पे हुई है। कई जगहें मालूम है